لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 25ویں پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کون سے اتنے پیارے پیارے احکامات دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ابھی لیٹلی ہم جو سپارے پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں وہ ہے کہ شرک نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور آخرت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طرح سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا دن آنے والا ہے جس میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ تو کس چیز کے سوال ہوں گے؟ وہ اس چیز کا ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، وہ کیسے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا نا جنت سے، جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، اور جو کوئی اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لائحہ عمل ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے لیے کتنے سیریس ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتنی دیکھیں، آپ لوگ جو اس وقت دورہ قرآن سن رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریگولر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں دنیا کی کتابیں ہم اتنے غور سے پڑھیں، ہم اتنے شوق سے پڑھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم اتنا ہلکا جان لیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات رکھی ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے تو پھر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے نا۔ ہم نے تو اس کو برکت کی کتاب بنا کے چلو جی اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اب اتنے اور پڑھ لیں گے۔ آف کورس ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بار بار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، جو کچھ عمل تم اس دنیا میں کرتے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے بندے کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، تم جو بھی عمل کرتے ہو اب ہمیں کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں ہماری زندگی جو ہم پورا دن، آپ ایک ہی دن کا 1 گھنٹے کا آپ سوچ لیں، کیا ہمیں اس میں یہ احساس ہوتا ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر ایون میری سوچ، ہم میرے دل کے اندر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ اس کی اگزامپل اس دنیا سے لیں کہ اب دیکھیں جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، فار ایگزامپل ہم ڈزنی ورلڈ جا رہے ہیں، اور ڈزنی ورلڈ جانے کے لیے ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، رائٹ، ہم پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، ہمیں گاڑی چلانی بھی آتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم سڑک پہ گاڑی لے کے چلے گئے اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے ڈزنی ورلڈ، ہمارے پاس کوئی میپ نہیں ہے، ہم نہ رکھنا چاہتے ہیں، میپ ہے بازار میں لیکن ہم لینے ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لو اب ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سڑک تو بنی ہوئی ہے، ہم چلے جائیں گے اور ہم کہیں نہ کہیں تو پھر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو آپ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا۔ یہی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا روڈ میپ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا،
ایک ایک آیا از اے سائن بورڈ کہ ادھر مڑ جو، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہاں سے چلتے 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 تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم راستے میں کہیں بھی ایگزٹ لیتے ہو تو فوراً راستے پہ چڑھ جاؤ، یہ بھی اسی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں واپس چڑھتے ہو تو تم پھر بہت دور، بہت خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، آپ کو جگہ جگہ گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ ملتی ہے۔ گرین لائٹ از لائک شاباش، گڈ، آپ آگے چلتے جاؤ، شاباش، بہت اچھا ہے۔ جہاں پہ ریڈ لائٹ آتی ہے، ہم سٹاپ کرتے ہیں نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ریڈ لائٹ کراس کرتے ہوئے ہماری جان نکل جائے۔ اب وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھو اگر تم کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ آ جائے گا، پھر بھی جان نکل جاتی ہے کہ وہاں پہ سٹاپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم یہ ریڈ لائٹ کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ ملے گا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر بھی ہمیں ڈر نہ لگے۔ اور اگر راستے میں ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آ جائے نا، تو ہم گاڑی صحیح چلاتے چلاتے بھی ہمارا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں چلا رہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آئی ایم واچنگ یو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے لیے ایک ایک جو تم عمل کر رہے ہو، یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے وہ ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہارے دل کی حالت ہے وہ بھی بیان کر دے گا، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے نا۔ ہم کیسے صحابہ کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ روتے تھے، کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے کس لیول پہ تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو وقت گزارا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم واقعی ہمارے دل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ بابا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی مرضی سے آف کورس کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور اسی کے مطابق جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں 25واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حکم ہے۔ سب سے پہلا آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یردو، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم عرض کرتے ہیں تجھ سے کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ۔ اور اب دیکھیے کہ سب سے پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی پتا بھی اپنے درخت سے نہیں گرتا، اور وہ گر کر کیا مٹی میں مل جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھا جاتا ہے یا ہوائیں لے کے اڑ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ نہیں تکتا انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے، اگر پہنچ جاتی ہے اس کو تکلیف تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اور اگر مزہ چکھاتے ہیں ہم اس کو اپنی رحمت کا، تکلیف کے بعد جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تھی، اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان اتنا نہ شکر ہے۔ اب خود اپنی ذات میں دیکھیے کہ جیسی ہماری مشکلیں آتی ہیں تو ہم کیسے سجدے پہ سجدہ، کیسے ہماری آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اور جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں پھر ویسی نارمل حالت میں چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی خوشحالی ہوگی، پر ضرور جتائیں گے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا، جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور ضرور مزہ چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کا۔ اور جب ہم نعمت سے نوازتے ہیں انسان کو تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو کرنے لگتا ہے دعائیں لمبی چوڑی، اور کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، پھر تم اس کا انکار کرو تو کون ہے اس سے بڑھ کر گمراہ؟
इससे जो मुखालफत करे और वो दूर की मुखालफत में निकल जाए। अन करीब दिखाएंगे हम उन्हें अपनी निशानियां इतराफ़ आलम में, और खुद उनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए उन पर ये कि कुरान हक है। क्या नहीं है ये काफ़ी तुम्हारे रब के बारे में कि वो हर चीज़ पर गवाह है। खबरदार रहो, यकीनन ये शक में है मुलाकात के बारे में अपने रब से। खबरदार रहो कि बेशक वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। यहाँ पे ये सूरह मुकम्मल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कहते हैं सूरह शूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम आइन सीन कौफ हरूफ मुक़त्तात है और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। इसी तरह वही भेजता है वो तुम्हारी तरफ और उन लोगों की तरफ जो तुमसे पहले थे। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। उसी का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और वो बुलंदो बतर और अजीम है। करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से और फरिश्ते तस्बीह करते हैं तारीफ के साथ अपने रब की, और माफी मांगते रहते हैं उन लोगों के लिए जो जमीन में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि करीब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ये इल्जाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटा बना लिया इस दुनिया में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेनियाज है। उसके तो फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं और उन लोगों के लिए जो जमीन में है उनके लिए मगफरत की दुआएं भी करते हैं। खबरदार रहो कि बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो लोग जिन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा कारसाज, अल्लाह निगरान है उन पर और नहीं हो तुम उन पर कोई दरोगा। और इसी तरह हमने वही किया है तुम्हारी तरफ कुरान अरबी, ताकि तुम खबरदार करो मरकजी शहर मक्का वालों को और जो इसके इर्द गिर्द हैं, और खौफ दिलवाओ जमा होने के दिन का, नहीं है जिसमें कोई शक, और जिसमें उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोजख में जाएगा। और अगर चाहता अल्लाह तो कर देता उनको जमात एक ही, लेकिन वो दाखिल कर लेता है जिसे चाहता है अपनी रहमत में, और जालिम लोग के नहीं है उनके लिए कोई साथी और कोई मददगार। देखें यहाँ पे दुआ करें कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की समझ अता कर और हमें चुन ले उन लोगों में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनको तूने राह हदायत के लिए चुना है। आमीन सुम्मा आमीन। क्या उन्होंने बना लिए हैं इसके सिवा दूसरों को कारसाज? सो अल्लाह ही तो है कारसाज, और वही जिंदा करेगा मुर्दों को, और वो हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी इनसे कह दो, और वो इख्तलाफात करते हो तुम जिसमें किसी तरह का, बस इसका फैसला अल्लाह की तरफ ही होगा। वही मेरा रब है और उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। पैदा करने वाला आसमान और जमीन का, उसी ने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े और जानवरों के भी जोड़े। वो तुमको फैलाता है इसी तरीके से, नहीं है उससे ऐसी कोई और चीज, और वो सुनता है देखता है, और उसी के पास है कुंजियां आसमानों और जमीन की। फराख कर देता है वो रिस्क जिसके लिए चाहता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया था जिसका नूह को, और जिसकी हमने वही भेजी ए नबी तुम्हारी तरफ, और वो हुक्म देता था जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को, ये कि कायम रखो दीन को और ना फूट डालना इसमें। बहुत नागवार है मुशरिकों को वो तुम बुलाते हो उनको जिसकी तरफ अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपनी बारगाह में जिसको चाहता है, और वो हदायत देता है अपनी तरफ उसको जो रुजू करने वाले होते हैं, जो तौबा करने वाले होते हैं, जो पलट पलट कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाने वाले होते हैं। और नहीं फिरकों में बटे वो मगर इसके बाद जो आ चुका उनके पास इल्म जिद में आपस की। और अगर ना होती एक बात पहले से तुम्हारे रब की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, तो फैसला कर दिया जाता उनमें। और यकीनन वो लोग जो वारिस हुए किताब के उनके बाद वो शक में है उसकी तरफ से, बड़े तरद्दुद वाले शक में। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो उसी दिन की तरफ दावत दो और उसी पर कायम रहो जैसा कि तुमको हुक्म दिया गया है, और ना पैरवी करो उनकी ख्वाहिशात की। और कह दो कि ईमान लाया मैं इस पर जो नाजिल फरमाई अल्लाह ने मुझ पर किताब, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इंसाफ करूं तुम्हारे दरमियान। अल्लाह ही हमारा रब और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, नहीं कुछ बहसो तकरार हमारे और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह जमा करेगा हम सबको और उसी की तरफ लौट कर जाना है। देखिए हम कितनी दफा एक ही बात पढ़ रहे हैं ना, कि लौट कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही जाना है। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसले कर लेगा कि कौन सच है और कौन झूठा है। और वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बाद इसके कि कबूल कर लिया हो उसे, उनका झगड़ा बातिल है
اس کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو؟ جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر، اور وہ جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں اسے اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ خبردار رہو، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو طلبگار ہو دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اسی میں سے کچھ، اور نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں پہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی عطا کر، آمین ثم آمین۔ کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین کہ وہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا تو آج ان پر قیامت کا دن آ جاتا، اور یقیناً جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم دیکھو گے ظالموں کے کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ بس اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، بے شک وہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف فرماتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، اور مزید عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر فراخی کر دیتا اللہ رزق میں اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ تو جو کچھ وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے لائق حمد ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ جو پھیلا رکھی ہے اس نے اس میں جاندار مخلوق، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب چاہے پوری طرح سے قادر ہے۔ اور جو واقعہ ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو اور غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، نکرہ ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والی اور سوچنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ جیسے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو کہ رہ جائیں کھڑے اس کی سطح پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے بسبب انہوں نے جو اپنے اعمال سے کمایا، اور معاف کر دے وہ بہتوں کو، اور جان لے وہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی شے نہ پائیدار فائدہ ہے اس کا دنیا کی زندگی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے،
उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और वो लोग जो परहेज करते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से, और जब कभी उन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं। और वो लोग जिन्होंने कबूल कर लिया फरमान अपने रब का और कायम की नमाज, और उनके मामलात बाहम मशवरे से होते हैं, और इसमें से जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से खर्च भी करते हैं। और वो लोग कि जब की जाती है उन पर ज्यादती तो वो बदला लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो इंसान जिस पे ज्यादती हुई है वो उसका बदला ले सकता है, लेकिन उसकी शराइत क्या है, और बदला बुराई का तो बुराई है इसी तरह की, सो जो दरगुजर करे और इस्लाह कर दे तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, बेशक वो नहीं पसंद फरमाता जुल्म करने वालों को। यहाँ पे क्या हमें सबक मिलता है कि अगर आपको किसी ने कोई तंग किया है या कोई ऐसी बात है तो आप बराबर का उसके बदला ले सकते हैं, लेकिन जुल्म नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी बढ़ के बात बताते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बहुत अजर देने वाले हैं। और आयत नंबर 41, और वो जिसने इंतकाम लिया इस पर जुल्म होने के बाद, तो ये लोग हैं कि नहीं उन पर कोई भी इल्जाम, कि इंतकाम ले सकता है इंसान लेकिन उतना ही जितना उस पर जुल्म हुआ है। सिर्फ इल्जाम तो उन पर है जो जुल्म करते हैं लोगों पर और फसाद फैलाते हैं जमीन में नाहक, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जिसने सब्र किया और माफ किया तो बेशक ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। माफ कर देना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे, लेकिन इंसान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो कैसे वो हम माफ करवाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके उनका तो जवाब देना होगा ना। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई दोस्त इसके बाद। और तुम देखोगे जालिमों को कि जब वो देखेंगे अजाब को तो कहेंगे कि क्या है वापस लौटने का कोई रास्ता। क्यों कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दफा हमें वापस लौटा दे तो हम कभी ऐसा काम ना करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और तुम उनको देखोगे कि वो पेश किए जाएंगे दोजख के सामने आजिजी करते हुए, जिल्लत से देख रहे होंगे छुपी निगाहों से, और कहेंगे वो जो ईमान लाए कि यकीनन घाटे में रहने वाले तो वो है जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को। क़यामत के दिन आप देखिए, गौर कीजिए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। इसमें आप जरा जो भी आप दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप देखिए अगर आप एक माँ हैं तो अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, उनको उनकी बुराइयों से नहीं सही तरह से रोकते, अक्सर एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली नस्ल, खासतौर पे आप देखिए जरा उनके कपड़े पहनने की जो सिचुएशन है कि वो किस हाल में घरों से बाहर निकलते हैं। और अगर माँ को ये एहसास ही ना हो, वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं रही है, आपके बच्चों को कोई नहीं ये बताएगा कि वो गलत तरह से तैयार होकर बाहर आए हैं या उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, सिर्फ आप ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो प्लीज शर्माइए मत अपने बच्चों को कहने के लिए। उनको आग की तरफ ले जाने वाली कई दफा माँ ही होती है। शुरू से उनको ये कह के यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो नाइस, और इतनी प्यारी लग रही हो, और ऐसे ऐसे कपड़े पहना के बच्चियों को बाहर निकालती हैं। फिर उनको आखिर में आदत हो जाती है और फिर उनके आंसू नहीं रुकते जब वो उनके काबू में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया कि आग में ले जाने वाले घर वाले ही होते हैं और घर वालों को भी आग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खबरदार रहो, बेशक जालिम लोग हमेशा के अजाब में रहेंगे। ये जुल्म है अपनी औलाद पे, ये जुल्म है अपने जानने वालों पे कि अगर आप उनको खैर की खबर ना दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम ना दो, हिम्मत करो और कम अज कम हिकमत के साथ उनको बताओ तो सही अगर आपको पता चल गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना होंगे उनके कोई दोस्त के उनकी मदद दे सके अल्लाह के सिवा, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह सो नहीं उसके लिए कोई भी रास्ता। हुक्म कबूल कर लो अपने रब का कबल इसके कि आप पहुंचे, वो दिन नहीं टलेगा अल्लाह की तरफ से, ना होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पना उस दिन और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो नहीं हमने भेजा तुमको इन पर निगहबान बनाकर, नहीं तुम्हारे जिम्मे मगर पहुंचा देना। और यकीनन हम जब मजा चखाते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो वो खुश हो जाता है, और अगर उनको पहुंचती है
برائی بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ غور کیجیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی بسبب اس کے کہ جو عمل انہوں نے کیے، جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے۔ یہ بھی آیا ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہوتی ہے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیا کو پڑھ کے تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر سیکنڈ بات میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ دعاؤں کا اختیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، دعا کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو تقدیر دعا بدل سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے، اور یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ جانتا ہے اور قدرت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور جو اس پہ صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑے اجر ہیں۔ دیکھیے یہ کہنا مجھے پتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ ہم آرام سے ایسے کہہ دیتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کا درجہ بھی تو پھر دیکھیے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو وہ حدیث قدسی یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اور نہیں ہے ممکن کسی بشر کے لیے کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے یا پیچھے سے پردے کے، یا بھیج دے کوئی پیغمبر فرشتہ تو وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلند و برتر اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح وحی کیا ہم نے تمہاری طرف قرآن اپنے حکم سے، نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن بنایا ہے ہم نے اس کو نور کے، ہدایت کرتے ہیں ہم اس سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک تم رہنمائی کرتے ہو سیدھی راہ کی طرف۔ اور آیت نمبر 53 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ راستہ اللہ کا جو مالک ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، خبردار رہو اللہ کی طرف رجوع ہوں گے سب کے سب معاملات۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم بھی تو اسی کے درمیان میں ہے نا، تو جس کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے نا، کہ ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہمارا مالک اتنی محبت کرنے والا کہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے تو بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر سکیں۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند مرتبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم پھر دیں گے تم سے یہ نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ہو لوگ حد سے گزرنے والے؟ اور کتنے ہی بھیجے تھے ہم نے پیغمبر پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ کرتے تھے اس کا مذاق۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہلاک کر دیا ہم نے جو زیادہ تھے ان میں طاقت میں، اور گزر چکی مثالیں پہلوں کی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس نے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ راست پر چلو، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیزوں کے، اور بنائی تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر یاد کرو نعمت کو اپنے رب کی، جب بیٹھ جاؤ ان پر تو کہو
कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। कहो पाक है वो जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए उनको, और ना थे हम इसको काबू में लाने वाले, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। और मुकर्रर कर ली है उन्होंने इसके लिए उसके बंदों में से औलाद, बेशक इंसान न शुक्र है सरी तौर पर, क्या बना ली है उसने इनमें से जो उसने पैदा की बेटियां, और तुमको नवाजते हैं बेटों से। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी को उस लड़की की उसने बयान किया है रहमान के लिए मिसाल, तो वो पड़ जाता है इसका चेहरा स्याह और गम से घटने लगता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो बेटियां मुकर्रर कर देते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां, फरिश्तों को कहते थे। तो जब खुद इनको खबर मिलती है बेटी की तो उनका चेहरा स्याह हो जाता है गम से। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उनकी नजर में कि जो घटिया चीज है वो अल्लाह के लिए खास कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या वो हस्ती मतलब औरत के बारे में है जो परवरिश पाए जेवरों में और वो बहसो हुज्जत में गैर फासी हो। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती है कि वो हस्ती जो परवरिश पाए जेवरों में, तो इससे पता चलता है कि औरत जो है उसका जो शौक है जेवर पहनने का, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं। और ठहरा लिया है उन्होंने फरिश्तों को और वो जो के रहमान के बंदे हैं औरतें, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक्त, अनकरीब लिख ली जाएगी उनकी शहादत और उन पर बाज पुरस होगी। और वो कहते हैं कि अगर चाहता रहमान तो ना करते हम उनकी इबादत, नहीं है उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये मगर सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। या हमने दी थी उनको किताब इससे पहले कि ये कि उससे इस्तदलाल करते हो, बल्कि वो कहते हैं कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादों को एक तरीके पर, और यकीनन हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादा को एक तरीके पर, और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। कहा पैगंबर ने कि अगरचे मैं लाया हूं तुम्हारे पास ऐसा तरीका जो ज्यादा सही है इससे कि पाया तुमने जिस पर अपने बाप दादा को, तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इसका जो तुम दिए जाते हो हम उसका इनकार करते हैं, तो हमने इंतकाम लिया उससे, सो देख लो कि कैसा अंजाम है झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुला होता, अगर हमें कोई अल्लाह का पैगाम बताता है ना, तो हम कहते हैं वो फनेटिक हो गया, इसको देखो जरा ये सारा वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमारे क्या अम्मी को नहीं पता था कि ये रस्में हमने करनी है कि नहीं, हमारे दादा को नहीं पता था, हमारे घरों में तो हमेशा से ऐसे होता रहे। बिल्कुल वही सोच अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बयान की है कि इल्म नहीं था ना, तो उनको किताब का नहीं पता था कि अल्लाह ने उसमें क्या अहकाम दिए हैं। और इल्म वाला जब उनको कोई बात कहता है तो वो इनकार ही कर देते हैं कि हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो आज हम अपने आप को करेक्ट करें। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कि बेशक मैं बेजार हूं इनसे जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर वो जिसने पैदा किया तो बेशक वही मुझको जल्द हदायत देगा। और इस इब्राहिम ने छोड़ी यही बात बाकी रहने वाली अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहें, बल्कि मैं मालो मता देता रहा उनको और उनके बाप दादों को, यहाँ तक कि आ पहुंचा उनके पास हक और रसूल साफ साफ बयान करने वाला। और जब आया उनके पास हक तो कहने लगे कि ये तो जादू है और यकीनन हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर इन दोनों बस्तियों में से जो अजीम है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं, तो देखो ताइफ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ा एरिया है, तो वहां पे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान नाजिल करता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या वो बांटते हैं रहमत को तेरे रब की, हमने बांट रखा है इनको दरमियान उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में, और हमने बुलंद किए उनमें से बास के बास पर दर्जात, ताकि बनाए उनमें से बास को बास का खिदमतगार, और रहमत तेरे रब की कहीं बेहतर है इससे जो कुछ ये जमा करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया में डिफरेंट दर्जात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बनाए हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाए कि इंसान जो है जिसको अल्लाह ने नवाजा है तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो उसका हक दे रहा है जो उससे नीचे वाले हैं, और नीचे वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाना चाहते हैं कि क्या वो सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये अल्लाह की बांट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को जिस भी दर्जे पर रखा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह, जैसे हर कोई अपना अपना
किरदार अदा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म जो भी उसने पहने होते हैं कपड़े वो उतारता है, तो सब बराबर हो जाते हैं ना। इसी तरह से इस दुनिया का जो लिबास है जब हम उतारेंगे तो क़यामत के दिन हम सब एक लेवल पे हो जाएंगे, और वहां पे जो अमल किया होगा, जो हमारा किरदार हमने इस दुनिया में निभाया होगा ना, अच्छा या बुरा, उसका फिर अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में, और अगर ना होता ये ख्याल कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही जमात, तो हम बना देते उनके लिए जो कुफर करते हैं रहमान के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिस पे वो तकिया लगाए बैठे हैं, और सोने की हो जाते वो भी, और नहीं है सब कुछ मगर ये थोड़ा सामान दुनिया की जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के नजदीक मुत्तकियों के लिए है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी तो इतनी हकीर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मच्छर के पर के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना, उतनी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उसकी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये जो काफिर है ना, इनकी घरों की छतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोने की बना देते, इनकी सीढ़ियां चांदी की बना देते, वो मसनदों पे तकिए लगाए बैठे होते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी इतनी हकीर है, लेकिन इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं नवाजते कि कहीं मुत्तकी लोग देखकर ये ना सोचे कि ये सही रास्ते पे हैं, इसलिए तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। लेकिन आखिरत का घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो मुत्तकियों का होगा जो हमेशा रहने वाला है। और आयत नंबर 36 को भी गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कोई तगाफुल करे जिक्र से रहमान के, तो हम मुकर्रर कर देते हैं उस पर एक शैतान, तो वो हो जाता है उसका साथी। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से गाफिल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक शैतान उसका दोस्त बना के उसके साथ छोड़ देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और ये शैतान रोके रखते हैं उनको रास्ते से, और वो समझते हैं कि वो हदायत पर हैं। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब आएगा हमारे पास तो कहेगा इससे शैतान के काश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला दो मशरकों का, तो तू बड़ा ही बुरा साथी था। और आयत नंबर 39, और हरगिज नहीं फायदा दे सकती तुम्हें ये बात आज के दिन जबकि जुल्म करते रहे हो तुम, तो ये कि तुम सब अजाब में शरीक होगे। तो क्या तुम सुना सकते हो बहरे को, या रास्ता दिखा सकते हो अंधे को, और उसे जो गुमराही में है खुली हुई। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी, ख्वाह ले जाए हम तुमको इस दुनिया से, तो बहरहाल इनसे हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या दिखा दे तुम्हें वो जिसका हमने इनसे वादा किया है, बिलाशुबा हम इस पर कुदरत रखते हैं, बस मजबूती से थामे रहो उसे जो वही की गई है तुम्हारी तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है, और बेशक ये कुरान नसीहत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, और तुमसे अनकरीब पूछगिछ होगी। और पूछ देखो इनसे जिन्हें भेजा हमने तुमसे पहले रसूलों में से, कि क्या हमने ठहराए थे सिवाय रहमान के और माबूद कि उनकी इबादत की जाए, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, और उसने कहा कि बेशक मैं हूँ भेजा हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से। फिर जब आया वो उनके पास हमारी निशानियों के साथ, तो वो इसकी निशानियों का मजाक उड़ाने लगे, और नहीं दिखाते हम उनको कोई निशानी मगर वो होती है बड़ी पहली से, और पकड़ लिया हमने उनको अजाब में ताकि वो बाज आ जाए। और वो कहने लगे कि ए जादूगर दुआ कर हमारे लिए अपने रब से मुताबिक इसके जो उसने अहद किया तो उससे, बेशक हम हदायत पर आ जाएंगे। सो जब हम दूर कर देते हैं उनसे अजाब, तो वो अहद शिकनी करने लगते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि देखिए मुशरिकीन मक्का पर जब कहत आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आके कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें तो हम ईमान ले आएंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहत उनसे दूर हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो फिर अपनी पहली हालत में चले गए, और मुनादी करवाई फिरौन ने अपनी कौम में, कहने लगा कि ए मेरी कौम, क्या नहीं मेरे लिए हुकूमत मिस्र की, और ये नहरें जो बह रही हैं मेरे महल के नीचे, क्या नहीं तुम देखते हो, क्या मैं बेहतर हूँ इससे वो जो बेइज्जत है और ना ही कर सकता है साफ गुफ्तगू। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हकलाते थे, इसीलिए वो दुआ भी थी रब्बी इश्रह ली सदरी जो हम पढ़ते हैं ना, वो हजरत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो तुम ये दुआ पढ़ना। और हजरत मूसा ने अपने भाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया था कि वो साफ बात करता है तो उसको मेरा मददगार बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा था। और आयत
नंबर 53 के मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि क्यों नहीं उतारे गए उस पर कंगन सोने के या आते उसके साथ फरिश्ते जमा होकर, और बस बेअकल कर दिया उसने अपनी कौम को, तो उन्होंने उसकी अताअत की। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे ना, उसके बारे में कहते थे कि उनको तो बेअकल ही कर दिया उसने, बेशक वो थे बड़े नाफरमान लोग। और आयत नंबर 55, फिर जब उन्होंने हमें खफा किया तो हमने इंतकाम लिया उनसे और गर्क कर दिया हमने उन सब के सब को, तो बना दिया हमने उनको गए गुजरे और एक इबरत बाद में आने वालों के लिए। और जब बयान की गई मरियम के बेटे की मिसाल तो तेरी कौम के लोग इससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा। नहीं बयान की है उन्होंने ये मिसाल तुमसे मगर सिर्फ झगड़ने को। हकीकत यह है कि हम है ही लोग झगड़ालू। नहीं था वो मगर एक बंदा फजल किया हमने जिस पर, और बना दिया हमने उसको नमूना बनी इसराइल के लिए। और अगर हम चाहते तो बना देते तुम में से फरिश्ते जमीन में जो तुम्हारे जानशी होते, और यकीनन वो ईसा निशानी है क़यामत की, तो ना हरगिज शक करो इसमें और मेरी इत्तबा करो, यही सीधा रास्ता है। और ना रोक दे कहीं तुम्हें शैतान, बेशक वो तुम्हारा एलानिया दुश्मन है। और जब आए ईसा खुली निशानियां लेकर तो कहा कि यकीनन मैं लेके आया हूं तुम्हारे पास हिकमत, ताकि खोल खोल कर बयान कर दूं तुम्हारे लिए बास बातें वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। सो डरो अल्लाह से और मेरी अतात करो। और आयत नंबर 64, बेशक अल्लाह वही है मेरा रब और तुम्हारा रब, बस इसी की इबादत करो, यही तरीका सीधा है। फिर इख्तलाफ किया आपस में ग्रोहों ने उनमें से, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, और अजाब है दर्दनाक दिन के लिए। और नहीं मुंतजिर है ये मगर क़यामत के कि आ मौजूद हो उन पर नागहान और वो खबर तक ना रखते हो। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। यहाँ पे आप जरा ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि सिवाय मुत्तकी दोस्तों के, कि आपके दोस्त क्या ऐसे हैं जो आपको अल्लाह की राह में बुलाने वाले हैं। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं, खुदा न खास्ता से बात करते हुए किसी के बारे में चुगली लग जाती है, या किसी के ना होते हुए उसकी बात करते हैं, तो वो आपको रोकते हैं इन बातों से। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। और ए मेरे बंदो, नहीं कुछ खौफ तुम पर आज के दिन, और ना ही तुम गमगीन होगे, कौन लोग जो मुत्तकी होंगे। ये है वो जो ईमान लाए हमारी आयतों पर और रहे फरमाबरदार, दाखिल हो जो बहिश्त में तुम और तुम्हारी बीवियां। गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश किया जाएगा आज के दिन, ले फिरेंगे उनके पास तश्तरियां सोने की और आप खोरे, और वहां होंगी वो चीजें जो भाती हैं जी को और लज्जत देती हैं आंखों को, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो, इसके सिले में जो कुछ तुम अमल करते थे, और तुम्हारे लिए इसमें मेवे हैं कसरत से जिनको तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम में होंगे हमेशा रहने वाली, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, और वो उसमें ना उम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, बल्कि वही थे जो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और आयत नंबर 77, और वो पुकारेंगे कि ए मालिक, दोजक के निगरान, ये दरोगा होगा दोजक का, उसको वो पुकारे होंगे कि मौत ही डाल दे हम पर तुम्हारा रब। वो कहेगा कि बेशक तुम हमेशा इस हालत में रहने वाले हो। यकीनन लेकर आए थे हम तुम्हारे पास हक, लेकिन तुम में से अक्सर हक से ना खुश रहते थे। क्या उन्होंने ठहरा रखी कोई बात, तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये ख्याल करते हैं कि हम नहीं सुनते उनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को। गौर कीजिए इस बात पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो ख्याल करते हैं कि नहीं हम सुनते उनकी सरगोशियों को और पोशीदा बातों को, क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख लेते हैं। कह दो कि अगर होती रहमान के लिए औलाद तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला होता। और आयत नंबर 82 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पाक है रब आसमान और जमीन का, रब है अर्श का इससे जो वो बयान करते हैं। तो छोड़ दो उन्हें इनकी बेहुदा बातें करने में और खेल तमाशा करने पे, यहाँ तक कि देख लें उस दिन का जिसका उनसे वादा किया गया है। और वही है जो आसमान में माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वो है हिकमत वाला और इल्म वाला।
हमें यही लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में हमसे सवाल करेंगे, आखिरत में हम जवाब देंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी वही तुम्हारा माबूद है और दुनिया की ज़िंदगी में भी जो अमल कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वाचिंग यू। और बहुत बाबरकत है वो जिसके लिए बादशाही है आसमान और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, और उसी के पास है क़यामत का इल्म, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और नहीं कुछ इख्तियार रखते वो जिनको ये पुकारते हैं इसके सिवा किसी शफाअत का, मगर जो गवाही दे हक के साथ और वो जानते हैं। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि किसने पैदा किया उनको, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, तो फिर कहाँ ये भटके फिर रहे हैं। कसम है उस रसूल के कौल की कि ए मेरे रब, यकीनन ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 89 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर दरगुजर करो इनसे और कह दो सलाम, तो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत अद-दुखान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, बेशक नाजिल फरमाया हमने इसको एक मुबारक रात में, बेशक हम हैं खबरदार करने वाले। यहाँ पे लैलतुल कदर की बात हो रही है क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि इस कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया था और इसी में फैसला किया जाता है हर हिकमत वाले काम का। और यहाँ पे देखिए कि हम आखिरी अशरा से गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है लैलतुल कदर गुजर गई हो या फिर आने वाले दिनों में, अभी 27वीं रात है, अभी 29वीं रात भी बाकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लैलतुल कदर नसीब करे। अगर तो वो गुजर गई है और हमने उस रात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की है, क़याम किया है, दुआएं की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात की इबादत भी कबूल करे। और अगर आने वाली है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें उस रात की हिकमतें, उस रात की बरकतें, उस रात की रहमतों से नवाजना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करते हुए कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए इस दुनिया को आसान कर दे और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हुक्म हमारी तरफ से है, बेशक हम ही भेजने वाले हैं रसूलों को बतौर रहमत तेरी रब की तरफ से, बेशक वही तो सुनने वाला है और जानने वाला है। रब है आसमान का और जमीन का और जो कुछ इन दोनों में है। अगर तुम हो यकीन करने वाले, नहीं माबूद सवाए इसके, वही जिंदगी देता है और वही मौत भी देता है। वही रब है तुम्हारा और रब तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद का जो पहले गुजर चुके, लेकिन ये शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। तो इंतजार करो उस दिन का जब नबूदार होगा आसमान साफ धुएं के साथ, छा जाएगा लोगों पर, ये है दर्दनाक अजाब। ए हमारे रब दूर कर दे हमसे इस अजाब को, बेशक हम ईमान लाए। ये कौन लोग कहेंगे उस दिन जब वो क़यामत की निशानियों को देख लेंगे, तो कहाँ मुफीद होगी उस वक़्त उनके लिए नसीहत, जबकि आ चुका उनके पास रसूल वाज़े अहकामात के साथ। फिर मुँह फेर लिया उन्होंने इससे और कहने लगे कि ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। बस हम टाल देते हैं अजाब थोड़ी देर को, यकीनन तुम फिर वही कुफर करने लगते हो। जिस दिन हम गिरफ्त करेंगे बड़ी सख्त गिरफ्त, तो बेशक हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और यकीनन हमने आजमाइश की उनसे पहले कौम फिरौन की, और आया उनके पास एक आली कदर रसूल, उसने कहा कि हवाले कर दो मेरे अल्लाह के बंदों को, बेशक मैं तुम्हारा ईमानदार रसूल हूँ। और ये कि ना सरकशी करो अल्लाह के सामने, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास खुली दलीलों के साथ। और यकीनन मैं पैरान ले चुका हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम मुझे संसार करो, और अगर नहीं ईमान लाते तो मुझ पर, तो मुझसे अलग हो जाओ। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर पुकारा उसने अपने रब को कि ए रब ये लोग नाफरमान है। अल्लाह ने फरमाया कि लेकर चले जाओ मेरे बंदों को रात में, और ये कि तुम्हारा ताकुब किया जाएगा, और छोड़ देना समुंदर को इस हालत में कि ठहरा हुआ, बेशक वो लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही छोड़ गए वो बागात और चश्मे, खेतियां और नफीस मकान और नेमतें करते थे जिनमें ऐशो इशरत, और इसी तरह हुआ और हमने वारिस बना दिया उनकी चीजों का दूसरे लोगों को। फिर ना रोना आया उन पर आसमान और जमीन को, और ना ही हुए वो मोहलत देने वाले। तो बेशक नजात दी हमने बनी इसराइल को इस अजाब से जो नहायत जिल्लत का था, यानी फिरौन से। बेशक वो था सरकश, हद से बढ़ जाने वाला, और बेशक तरजीह दी थी हमने उनको बनी इसराइल को इल्म की बना पर अहले आलम में।
اور دی تھی हमने उनको ऐसी निशानियां जिनमें से थी खुली आजमाइश उनके लिए। और यकीनन ये लोग तो कहते हैं नहीं ये है मगर हमें मरना बस एक बार, और नहीं है हम दोबारा उठाए जाने वालों में से। और आयत नंबर 36 के पास जिंदा कर लो हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं भला ये अच्छे हैं ये कौम तुब्बा के और वो लोग जो इनसे पहले हो गुजरे, हमने इनको हलाक कर दिया, बेशक थे वो गुनाहगार लोग। और नहीं बनाया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल करने के लिए, नहीं पैदा किया हमने उनको मगर हक के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सब का जब वो जी उठेंगे इसमें, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह, बेशक वही गालिब है बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा दरख्त जुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का जैसे पिघला हुआ तांबा, खौलेगा वो पेटों में जिस तरह खौलता है गर्म पानी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के, फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी। अब मजा चख यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला, यकीनन ये है वही करते थे जिस पे तुम शक। अल्लाह अकबर। अब देखिए कितनी बैनायात हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला किन के बारे में कह रहे हैं जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक थे ना वो भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया। और उनके साथ ये क्यों हो रहा है? उनके अमाल की वजह से, जो अमल उन्होंने दुनिया में किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फख्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह सकें कि या रब्बुल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेजगार होंगे अमन के मुकाम में, बागों में और चश्मों में, पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज रेशम के, बैठे हुए आमने सामने इसी तरह, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, तलब करेंगे वहां हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ, नहीं चखेंगे वो मजा वहां मौत का सिवाय पहली मौत के, और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के। ये फजल है तेरे रब का, यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में, शायद कि ये नसीहत पकड़े। और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जाथिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, कि नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़िल हकीम, कि जो गालिब है और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के। और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से, फिर जिंदा किया उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आयत नंबर 6, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ, तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे? बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है, सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे, सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है। और आयत नंबर 9, कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ तो उड़ाता है उनका मजाक, यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला, उनके पीछे है दोजख और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी, और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज, और उनके लिए है अजाब अजीम। यही हदायत है, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की, उनके लिए है अजाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला। अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को ताकि चले कश्तियां इनमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, सब का सब अपने हुक्म से।
बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। कह दो इनसे जो ईमान लाए कि दरगुजर करें इन लोगों के बारे में नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का, ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं। जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है, और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका जरर भी उसी की जात को होगा। फिर अपने रब की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने अता की बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत, और हमने अता फरमाई उन्हें पाकीज़ा चीजें और उनको फजीलत दी सारे जहां पर। और हमने अता की उनको वाज़े निशानियां दीन के बारे में, तो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर इसके बाद कि आ पहुंचा था उनके पास इल्म आपस की जिद में। बेशक तुम्हारा रब फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का किया करते थे जिनमें वो इख्तलाफ। फिर कायम कर दिया हमने तुमको एक खुले रास्ते पर दीन के मामले में, तो तुम उसी पर चलो और ना करो इत्तबा ख्वाहिशात की उन लोगों की जो नहीं इल्म रखते। यकीनन ये हरगिज नहीं काम आएंगे तुम्हारे अल्लाह के सामने कुछ भी। और बेशक जालिम लोग आपस में एक दूसरे के साथी हैं, और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये बसीरत की बातें हैं लोगों के लिए, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं बुराई का, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों जैसा जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कि क्या यकसा होगी उनकी जिंदगी और उनकी मौत। बुरा है जो वो हुक्म लाते हैं। और पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को हक के साथ, और ताकि बदला पाए हर नफ्स इसका जो उसने कमाया, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। क्या तुमने देखा उसको जिसने बना रखा है अपना माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को, और गुमराह कर दिया उसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद, और मोहर लगा दी उसके कानों पर और उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आंखों पर पर्दा। सो कौन है जो उसको हदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्या नहीं वो नसीहत हासिल करते इसके बाद? अब देखिए कि साया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो इंसान जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी उसके कानों पर, उसके दिल पर, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो आज हम अपने आप को चेक करें जरा। हम मुंह से तो नहीं कहते कि हमने खुदा इनको बना लिया है, लेकिन हमारे अमल ये बताते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इस दौरे कुरान के बाद हमारी जिंदगियां बदल जाएं। इल्ला माशाल्लाह वो लोग जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चले हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए और आसानियां करे, और जो अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको थाम ले। आमीन सुम आमीन। और कहते हैं कि नहीं ये मगर हमारी जिंदगी तो दुनिया की जिंदगी, यही हम मरते हैं और जीते हैं, और नहीं हलाक कर देता हमें मगर जमाना ही, और नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म, नहीं ये मगर बस कयास सराइयां करते हैं। और जब पढ़ी जाती है उनके सामने हमारी वाज़े आयात नहीं होती उनको हुज्जत, मगर ये कहते हैं कि ले आओ हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे। और कह दो कि अल्लाह ही तुमको जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जमा करेगा क़यामत के रोज। नहीं है कुछ शक जिसके आने में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और जमीन की, और जिस रोज बर्पा होगी क़यामत की घड़ी, इस रोज खसारे में पड़ जाएंगे अहले बातिल। और देखोगे तुम के हर फिरके को के घुटनों के बल गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। कि देखोगे तुम हर फिरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर फिरके को पुकारा जाएगा उसकी किताबे अमाल की तरफ। आज के दिन तुमको बदला दिया जाएगा उसको जो कुछ तुम करते थे। ये हमारी किताब बयान कर दी कि तुम्हारे बारे में हक के साथ, बेशक हम लिखवाते जाते हैं जो कुछ तुम करते हो। देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है एक एक लफ्ज जो कुछ हम करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर वो लोग जो ईमान लाए बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, यही है वो जो खुली कामयाबी है। और फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनसे कहा जाएगा कि क्या नहीं थी मेरी आयात के पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने, बस तुमने तकब्बर किया और थे तुम लोग नाफरमान। और जब कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और क़यामत के नहीं है कुछ शक इसके आने में, तो तुम कहते थे कि नहीं हम जानते कि क़यामत क्या है, और ना ही हम ये समझते हैं कि उसको मगर ख्याली, और नहीं है हम इस पर यकीन रखने वाले। अब देखिए आपने ये बात सुनी होगी ना कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, जो जो कुछ है ना ये दुनिया की जिंदगी है, यहाँ पे अजर मिलना है, यहाँ पे जो हमें अच्छी चीज मिल रही है ना वो हमारे अमाल की वजह से, जो बुरी मिल रही है ना तो यहीं पे सारे हिसाब होने, आखिर में कुछ भी नहीं होना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हमें कह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जाहिर हो जाएंगी
ان پر बुराइयां उनके अमाल की और आग घेरेगा उनको वो जिसका मजाक उड़ाया करते थे। और कहा जाएगा कि आज हम बुला देंगे तुम्हें जिस तरह तुमने बुला दिया पेशी को अपने इस दिन की, और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और नहीं है तुम्हारा कोई मददगार। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि तुमने बना रखा था अल्लाह की आयतों का मजाक और धोखे में डाल रखा था तुमको दुनिया की जिंदगी ने, तो आज ना निकाले जाएंगे वो इसमें से और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए है हर तरह की तारीफ, और जो रब है आसमान का और रब है जमीन का और रब है तमाम जहानों का। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और इसी के लिए है किब्रियाई आसमान में और जमीन में, और वो गालिब है और हिकमत वाला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25वां पारा खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर हुक्म को समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। देखिए हम बार बार जो इस दफा हमने चीज पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, और उस दिन कैसा हिसाब होगा वो भी हमने देख लिया कि देखिए सारी कुरान में जो खुशखबरियां है ना वो मुत्तकियों के लिए है। वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है वो ही सारा कुछ है, तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फहम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि जिंदगियां जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो उदखुलुल इस्लाम काफ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है। कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हमें डर लगता है, हमें शैतान ये बहका देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि ये आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझे जैसे समझने का हक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ऐ लोगों तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब इंशाअल्लाह इजाजत दीजिए, कल हम 26 पारे का आगाज करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।